Okay. Yeah, so today is our day number 3, and we already have completed some part of the course. And अभी क्या है कि we had started with the history of Java. तो history of Java में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? Who developed it? जल्दी बता दो. Who developed it? It was James Gosling. James Gosling, correct. And where was it developed for the first Sun time? Microsystem. Sun Microsystem. Now it is with which company? It is with Oracle. Oracle Corporation. And Java is a simple programming language which is widely used and is well documented, and it is case sensitive. ठीक है, ये हम लोग लास्ट 2 क्लासेस में देखा है. एंड देन वी डिस्कस द फीचर्स, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, दे वर योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड द अदर वन वाज योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट. And others you can include as part of your definition of what are the features of Java. ठीक है, so these things we have already completed. Then we moved into why Java is portable. Portable क्यों है? Because our Java class file, जो हमारा Java class file होता है, that gets converted into java.javac file, that is the bytecode. ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वी कैन टेक दिस बाइट कोड एंड रन दिस इन एनी अदर कंप्यूटर. दैट मेक्स जावा पोर्टेबल, राइट. और जो भी है हम कहीं और पे, सिंस वी कैन रन दिस बाइट कोड एनीवेयर, तो हम लोग क्या करते हैं, जावा बिकम्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. हो सकता है दिस पर्टिकुलर पार्ट वाज डन इन योर विंडोज सिस्टम, द अदर पार्ट वाज परफॉर्म्ड इन द लिनक्स और मैक. ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल, एंड दैट मेक्स आवर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. करेक्ट, ये पढ़ा था, हाँ या ना? हाँ. चलो, मूविंग ऑन. then what exactly is our Java development kit, Java runtime environment and JVM? तो JVM कौन है? JVM is responsible for running our Bytecode. bytecode. Perfect. I want all of you to answer. Come on. Then what all does Java runtime environment consist of? It consists JVM of and set of library files. JVM and set of library files. And then your Java development kit has the development tool plus JRE. Yeah. Okay, then after that what did we do? We saw a program which was to print, right? It was just to print a simple message. तो simple message print करने के लिए कौन सा line हम लोग use करते हैं? Which line do we use? System.out.println. We use system.out.println, where s of this particular system is capital, right? S capital होता है, s small नहीं होता है, बाकी o and p are small. ठीक है, ये याद रखना, because Java is case sensitive. If you write system with small s, ये एरर दे देगा. ठीक है, जावा केस सेंसिटिव, रिमेंबर दैट. ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा. देन व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट क्लास? लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज योर क्लास. चलो, आई वांट शफा टू आंसर. शफा, व्हाट इज अ क्लास? Hello. या शफा, गो अहेड. Yeah, a class is a blueprint or template for creating objects. Yeah, perfect. Sania, I want you to answer, what are objects? Faizan, objects are real world entity that has attributes and behavior of its class. या परफेक्ट. ठीक है, और हम लोगों ने फिर कुछ एग्जांपल्स देखे थे. ठीक है, कि कार का देखा था, कार का नहीं देखा था शायद, राइट? तो चलो मुझे बता दो, इफ आई एम राइटिंग मारुति, देन यू हैव हुंडई, एंड देन यू हैव i10, तो इसमें कौन ऑब्जेक्ट एंड कौन क्लास है? चलो. i10 ऑब्जेक्ट है, बाकी दोनों क्लास है. परफेक्ट. ठीक है, ये दोनों हो गया. चलो, कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, आई वांट समबडी एल्स टू आंसर. सो we have Prasenjit also here and Asif also here. So okay, so Prasenjit, you tell me, suppose I am talking about the electronics. Okay, so if I have your Sony, and then we have Redmi, and then we have Samsung, and then we have Sony some model C2, suppose Sony C2. So what all are classes and what are the objects? Prasenjit. The companies like Sony, Samsung, these are classes, and the models would be the object. Perfect. Why it is an object? Because we can see and Because it's real, we can touch it, or we can feel it. Yeah, correct. So it is a real world entity. That is what the definition says, right? So those are the objects. Then we covered variables, right? Variables. What are variables? What is the literal meaning of a variable? Come on, anyone? It is a data container. It's actually a memory location name
that we give, and it stores value. Correct. It stores a value that can change. We can actually change those values, right? And it was perfectly said by Shafaq that it is a data container. It contains the data which can be changed or not. Okay, so that is done. And then we studied कि variable का naming convention. What is the naming convention of variable? So we had some 3 points. Okay, चलो बताओ. Point number 1 क्या हो सकता है? It starts A with variable can have alphabets, Go ahead. numbers, and special symbols. Only dollar symbol and underscore. Correct. ठीक है. And we can start only with Character letters. Letters. we can start with letters and dollar sign. ठीक है, ये याद रखना. Blank spaces cannot be used. Yes, second point is blank spaces cannot be used. And what is the third point? No keywords can be used. Okay, we cannot use keywords for naming our variable, right? So these are the few points that we did study in our last class. Now today we will look into data type, keyword, and then packages. Okay, so these are few things that we will look into. So we already discussed this particular part, the rules for naming a variable, and it was perfectly answered by you all. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? We will be moving into data type. ठीक है, तो डेटा टाइप में हम लोग मूव करने से पहले जस्ट लेट मी शेयर, हम लोग उसके बाद लास्ट क्लास वी हैड डन अ प्रोग्राम, राइट? याद है सबको कि I asked you to write a program where you have to write hi my name is this and my age is this, right? याद है? हाँ. So this is what I had actually told you. तो यहाँ पे क्या था कि हम लोग यहाँ पे लिए थे string. I just asked you to remember this particular word string, and then your name is equal to anything whatever you were giving. I am giving here regrow. ठीक है, that's the name of our institute. तो चलो regrow, and then was your int. Okay, int and your age. ठीक है, so our regrow is of 1 year old now. Okay, तो ये था हमारा. तो यहाँ पे क्या था? If you see this name, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है बताओ? This name is the variable, correct? Age is the variable. हाँ कि ना? हाँ. Correct, because name is containing the data regrow, age is containing the data 1, correct? हाँ कि ना? हाँ. Yes. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? As I said, Java is smart. Java smart है, but it is not very smart. बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है. Not smart to an extent कि वो ये खुद से डिटरमिन कर पाए, वो खुद से ये चीज जज कर पाए कि मेरे पास जो डेटा आया है वो एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, तो ये क्या होता है देखो. तो इससे क्या है ना, वी हैव टू फीड, हम लोग को बताना पड़ता है कि भाई इट इज लाइक वी आर टेकिंग अ वर्ड, यानी हम लोग कुछ मतलब देखो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज एक्चुअली जो वर्ड बनता है. वर्ड कैसे बनता है? वर्ड इज मेड अप ऑफ Sequence of characters. वर्ड इज मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, करेक्ट? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, वर्ड कैसे बनता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. आर आया, ई आया, जी आया, ओ आर आया, ओ आया, डब्ल्यू आया, करेक्ट? हाँ कि ना? कम ऑन से गाइस. Yes, yes. यस, करेक्ट. इसके बाद क्या है? फिर हमारा जो ये नंबर है, नंबर कैसे बनता है? ये तो डिजिट से बनता है, जो नंबर्स होता है आपका. ठीक है, नंबर्स तो आपका डिजिट से बनता है. ठीक है, तो हम लोग को ये बताना पड़ता है कि हम लोग जो वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, इसमें स्टोर क्या करना है. ठीक है, मतलब किस टाइप का डेटा स्टोर करना है. ठीक है, अब रीजन बताऊंगा व्हाई एग्जैक्टली इट इज कि हम लोग को बताना पड़ता है. ठीक है, चलो तो सबसे पहले ये याद रखते हैं हम लोग कि इन टोटल हम लोग का जो डेटा टाइप होता है, आर डेटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, जो हमारा डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप जो होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव. करेक्ट. दूसरा होता है आपका नॉन प्रिमिटिव. ठीक है, तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. अच्छा, ये वर्ड प्रिमिटिव मैं हमेशा बोलता हूं कि व्हेनेवर वी आर रीडिंग समथिंग वी शुड ट्राई टू रिलेट इट विद इंग्लिश. ठीक है, तो प्रिमिटिव सुन के क्या लगता है? एनीवन बताओ बताओ, क्या लगता है प्रिमिटिव सुन के? कुछ वर्ड आता है ऐसा? प्रिमिटिव मतलब लगता है कि कुछ पुराने टाइम की बात हो रही है. बोलो. ठीक है, प्रिमिटिव इज समथिंग जो कि बहुत बेसिक, जो एंशिएंट टाइम से, ऐसा लोग बोलते हैं ना, इट वाज फ्रॉम अ प्रिमिटिव टाइम, ऐसा करके रहता है. तो ठीक है, कभी भी कहीं पे प्री लिखा हो ना, जैसा लोग बोलते हैं प्री कंडीशन,
दैट इज वो कंडीशन होना चाहिए किसी चीज को होने से पहले। तो द वर्ड प्री मीन्स कि पहले, ठीक है, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। हम लोग जब प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स मतलब पहले, ठीक है, पोस्ट मतलब पोस्टफिक्स मतलब बाद में, ठीक है। तो सेम थिंग कम यहाँ पे होता है, जो हमारा प्रिमिटिव है ना, इट इज समथिंग जो पहले से जो एकदम बेसिक हमारा आ रहा है ना टाइप, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इसके अंदर टोटल मैं बता रहा हूं आपको 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है ये हमारा हो गया जो ऑब्जेक्ट वाला आ गया, जैसे स्ट्रिंग क्लास हो गया, ठीक है, आपका एरे हो गया। तो दीज कम अंडर आपका प्रिमिटिव डेटा। जस्ट रिमेंबर द नेम जस्ट फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रिमिटिव टाइप होता है, नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है, एंड देन यू हैव स्ट्रिंग एंड एरे, ठीक है। इसके अंदर 2 एग्जांपल फिलहाल के लिए याद रखो, ठीक है। एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर द ऑल द 8, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमारा क्या क्या होता है, चलो विल जस्ट लुक एट द चार्ट फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस। देखो यहाँ पे विल जस्ट गो अ लिटिल डाउन एंड दिस इज आवर चार्ट, ठीक है। तो ये देखो डेटा टाइप डेटा टाइप जो है हमारा, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में होता है, एंड देन कम्स योर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड दिस इज योर नॉन प्रिमिटिव डेटा। इन टोटल वी हैव 8 ओवर हियर, यहाँ पे आप काउंट करोगे तो 8 होगा ये, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये हो गया। देन फ्लोट एंड डबल 5 एंड 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये 8 जो है वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दीज 8। और यहां पे मैंने क्या कहा था, एरे है, वी विल बी स्टडिंग स्ट्रिंग सेपरेटली, एरे हम लोग पढ़ेंगे, लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, सेट हम लोग पढ़ेंगे। दीज आर एक्चुअली देयर, बट हम लोग उतना डिटेल पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है हम लोग स्ट्रिंग, एरे, लिस्ट एंड सेट वी विल बी कवरिंग, एंड दिस प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बूलियन, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड पुटिंग इन द ग्रुप, इफ एनीबॉडी वांट्स टू रेफर, वो आगे चल के रेफर कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। चलो, तो दिस इज डन। तो इसमें होता क्या है, विल जस्ट डिस्कस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 टाइप से, डेटा टाइप एंड प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब मैंने आपसे कुछ कहा था कि मुझे जब स्ट्रिंग ले, मतलब जब कुछ वर्ड लेते हैं देन वी यूज स्ट्रिंग, जब कोई नंबर लेते हैं देन वी यूज इंट। तो मैंने आपसे एक और कंडीशन कहा था, मतलब लास्ट क्लास में, कि डोंट यूज एनी डेसिमल नंबर, राइट, क्योंकि डेसिमल नंबर के लिए इसको हमको बताना पड़ता है कि दैट इज ऑफ अ डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो वो अभी हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। And then we will also see the reason why exactly we need to tell computer कि भाई this is string type, this is of some other type, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका बाइट होता है, ठीक है, तो वी वोंट गो विद बाइट। चलो हम लोग सबसे पहले देखो, हम लोग को वो उस पर फोकस करेंगे जो हम लोग के नीडेड है, ठीक है। तो चलो, हमारा नीडेड कौन है, नंबर होता है। सबसे पहले नंबर होगा 1 2 3 4, जो होल नंबर है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, एंड सिंस वी आर टेलिंग इंटीजर, तो इसमें क्या आता है, -1 -2 एंड दिस कैन गो अप टू आपका एक लिमिट तक, नंबर तक, ठीक है। एंड दिस कैन ऑल्सो गो अप टू योर लिमिट तक, ठीक है। तो ये जो होगा, वी विल बी पुटिंग ऑल दीज नंबर इन इंट। कहां डालेंगे इसको हम लोग, बताओ कहां डालेंगे, इंट में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो होता है, ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज कि इफ वी हैव दिस पॉइंट, ठीक है, जैसे 0.1 2.2 एनीथिंग 3.141, ठीक है, एंड और माइनस -0.71 एनीथिंग, ठीक है, माइनस प्लस एनी नंबर, ठीक है। और अगर एज अ होल नंबर भी अगर 1 भी लिखे तो इट शुड बी 1.0, ठीक है। तो 1.0, तो दिस विल, फॉर दिस वी विल बी यूजिंग डबल। क्या यूज करेंगे डेसिमल नंबर के लिए, डबल, वी विल राइट डबल, डबल, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा आता है कि इफ सपोज आई हैव टू जस्ट यूज अ कैरेक्टर, ठीक है। एक कैरेक्टर मतलब एक सिंगल अल्फाबेट या एक सिंगल नंबर, ऐसा अगर हमको यूज करना है, ठीक है, एंड वी वांट टू यूज इट एज कैरेक्टर, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे लिखना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ,
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है दिस कुड बी अ नंबर, दिस कुड बी अ कैरेक्टर, दिस कुड बी अ स्पेशल कैरेक्टर, दिस कैन बी एनीथिंग। अगर वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है देन वी हैव टू यूज, व्हाट कैन वी यूज? कैर, CHAR, कैर। ठीक है, कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म में कैर, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। देखो आई छोटा है, डी छोटा है, एंड कैरेक्टर का C छोटा है। ठीक है, एवरीथिंग विल स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ठीक है, ये हो गया। अब कभी भी हम लोग को अगर मान लो किसी का वर्ड लेना है, ठीक है, वर्ड लेना है, कोई भी वर्ड है, ठीक है, एंड वी विल कीप इट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, ये हो गया। या फिर सेंटेंस लेना है, आई एम जस्ट राइटिंग सेंटेंस, जस्ट अंडरस्टैंड कि फुल स्टॉप लगा है, 3-4 लाइन है उसमें, आई एम जस्ट राइटिंग सेंटेंस। ठीक है, या फिर आपका मतलब इवन आप सिंगल कैरेक्टर को भी अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले, जैसे ये ए है बट यू आर टेकिंग इनसाइड डबल इन्वर्टेड कॉमा, दैट मींस इट इज इवन इफ यू आर जस्ट कीपिंग दिस एम्प्टी, ठीक है, दिस विल कम अंडर स्ट्रिंग। लेकिन ये स्ट्रिंग का एस क्या होगा? कैपिटल होगा, याद रखना। ये स्ट्रिंग का एस क्या है? कैपिटल होगा। ठीक है, क्यों कैपिटल होगा? बिकॉज दिस बिलोंग्स टू योर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। फॉलो कर रहे हो? कहां पे है देखो ये, और बाकी कहां पे जो मैं जिसकी मैंने बात की, इंट की बात की, देखो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, मैंने डबल की बात की, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, कैर की बात की, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रिंग, लेकिन ये कहां है? ये है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो ये हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये याद करने के लिए एक पैटर्न बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट याद करने के लिए पैटर्न बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। एंड देन व्हाट कम्स नेक्स्ट इज, कभी भी अब हम लोग का मान लो कि वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। कभी ये होता है ना, कभी हम लोग कुछ है कि ट्रू है एंड देन वी से फॉल्स है। ठीक है, कभी ट्रू एंड फॉल्स होगा तो वी विल गो विथ बूलियन। बहुत लोग बूलियन बोलते हैं इसे, इट इज कॉल्ड बूलियन या बूलियन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स 1 2 3 4 5। दीज 5 टाइप्स हम लोग रेगुलरली यूज करेंगे। ठीक है, तो कभी भी इंट लिखेंगे तो क्या डालना उसके अंदर? इनपुट क्या जाएगा? होल नंबर। उसके अंदर नंबर जाएगा विदाउट डेसिमल पॉइंट। उसके बाद जब डबल लिखेंगे तो वी कैन गिव होल नंबर, लेकिन अगर होल नंबर लिखते तो ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या होगा? 0.0 ऐड हो जाता है। ठीक है, फॉलोइंग और नॉट फॉलोइंग? ऑल ऑफ यू, आर यू फॉलोइंग? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कि अब हमारा अगर सिंगल कोट के अंदर हमें अगर कोई एक चीज लेना है तो वी विल बी यूजिंग सिंगल कोट के अंदर एंड वी विल गिविंग इट एज कैर। क्या देंगे? कैर देंगे। ठीक है, एंड अगर कोई वर्ड है या सेंटेंस है, लाइक यू ऑलरेडी सो, अपने नाम को आप लोगों ने डाल के देखा था, ठीक है, तो उसमें हम लोग स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, और ट्रू और फॉल्स की केस कभी भी आती है तो वी विल गो विथ व्हाट? विल गो विथ बूलियन। ठीक है, या बूलियन बोलो, बहुत लोग बूलियन बोलते हैं तो बूलियन बोल सकते हो। Anybody is asking anything? Okay. Shakil, you are asking, but your voice is very feeble here. बहुत low sound कर रहे हो। तो जो सेंड किए उस पेज पे जाओ ना प्लीज। Sorry? वो वाली पेज पे जाओ ना जो अभी सेंड किए ग्रुप में। इस पे स्ट्रिंग में ए भी लिखे हो, एक वर्ड लेटर ए ऊपर भी। करेक्ट। तो देखो ये क्या होता है, ये जो आप ए देख रहे हो, ठीक है, दिस पर्टिकुलर ए इज आस्किंग कि मैंने यहाँ पे भी ए लिखा है और यहाँ पे भी ए लिखा है, ए विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। याद है आप लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें आप लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना नाम लिखा था, याद है? स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन शकील, याद है? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर तुम ए को सिर्फ ए लिखते हो दैट विल बिलोंग टू स्ट्रिंग। ठीक है, एंड अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो तो उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? कैर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये लिख देता यहाँ पे, अगर मैं कैर नेम लिख देता तो ये सिर्फ आर होता। ठीक है, या फिर कोई भी कैरेक्टर एक होता, लेकिन ये देखो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रही है, इज इट विजिबल? यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे तो दिस हैज टू बी स्ट्रिंग। ठीक है, आ गई बात समझ में? और कैरेक्टर में हमेशा सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर में तुम ऐसे लिख के सिंगल दे के आर ही नहीं लिख सकते हो, सिर्फ इसके अंदर या तो आर लिखोगे या तो ई लिखोगे, सिंगल कैरेक्टर ही होता है इसके अंदर, दो नहीं होगा कभी भी। ठीक है, फॉलोइंग और नॉट? अदर्स? Yes.
ठीक है? तो दिस इज समथिंग दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है? आई एम पुटिंग इट इन द ग्रुप एज वेल, कि आप अगर रेफर करना चाहो तो यू डेफिनेटली कैन गो अहेड एंड डू इट। चलो, तो ये हो गया हमारा बेसिक डेटा टाइप, जिसके बारे में हम लोग को जानना था कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। और इसके बाद ओके, फॉर दिस वन आई ऑलरेडी, तो सॉरी, चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ये हमारा जो डेटा टाइप्स हो गया, ठीक है? अभी जितना जानना था वी आर डन विद दिस। वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल बी कमिंग डाउन टू दीज स्लाइड, ठीक है? So just for reference, I had brought you down, and again I'll be moving up, and we will be going further with other things. Okay. So हम लोगों ने यहाँ देखा कि हमारा जो डेटा टाइप होता है, we have to tell the data, वेरिएबल की which type of data it should take, कौन सा डेटा लेना है वो हमको वेरिएबल को बताना होता है। Now coming to the question, क्यों, why, what is the necessity, ठीक है? तो जावा को हम लोग को इसलिए बताना पड़ता है कि भाई इस तरह का आप डेटा लो, क्योंकि देखो होता क्या है, whenever we write int suppose I'm writing a, ठीक है? मैंने एक वेरिएबल लिया है a, int a, जब भी हम ये लिखते हैं ना, बस ये लिखा, मैंने असाइन कहीं नहीं किया इक्वल टू 5 या ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? तो whenever I am writing this line, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? जावा जब इस लाइन को रीड करता है ना, जब वो इंटरप्रेट करता है, मैंने कहा ना कि जावा मतलब जेवीएम आपका इंटरप्रेट करता है, याद है? हाँ कि ना? बोलो बोलो। हाँ, करेक्ट। तो जब ये इंटरप्रेट करता है, तो जावा जैसे ये रीड करता है, ये जाता है और अपने मेमोरी में एक जगह बना लेता है और उसको नाम दे देता है ए, ठीक है? ये क्या नाम देता है? ये एक जगह बना लेता है और उसको नाम दे देता है। तो भाई इस ए को कितना जगह देना है वो कैसे मालूम? अब तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लो मेरा मेमोरी पूरा है, ठीक है? मान लो मेरा ये पूरा मेमोरी है। अब अगर इसे ये पता नहीं है कि ये इंट का कितना साइज होता है, तो ये क्या करता है? ये तो जाके अगर मन करेगा तो भाई पूरा मेमोरी अकेले ले लिया। अब हमको अगर मान लो कि इंट बी लिखना है, तो इसके लिए क्या बोलेगा? तो इनसफिशिएंट मेमोरी हो जाएगा, हाँ कि ना? होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ, हो जाएगा। तो इसको क्या है कि हम लोग को थोड़ा मेमोरी एफिशिएंट बनने के लिए हम लोग क्या बोलना पड़ता है कि भाई साहब आप जाओ इंट के साइज का लो, ठीक है? तो इंट के साइज का ऑलरेडी हमारा साइज डिफाइंड होता है, ठीक है? अब मैं आपको दिखा देता हूं कि साइज कैसे डिफाइन होता है, ये देखो अब आप, ठीक है? कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डेटा टाइप्स इन जावा एंड साइजेस, ठीक है? ये कर लेते हैं एंड विल जस्ट सी इट क्विकली, ठीक है? देखो यहाँ पे दिया हुआ था, देखो ये दिया, बाइट के लिए 1 बाइट होता है, शॉर्ट के लिए 2 बाइट होता है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4, ये देखो दिख रहा है 4, ये 2, ये 1 बाइट, ठीक है? 8 बाइट, ऐसे ही करके ये सारा आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी जितने हैं, यू कैन जस्ट गो एड एंड सी एनीवेयर, ठीक है? तो हम लोग को मेमोरी बचाने के लिए देखो, कैरेक्टर का होता है 2 बाइट्स होता है, वैसे स्ट्रिंग का भी होता है 8 बाइट्स, ठीक है? डबल का होता है 8 बाइट्स, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मेमोरी के लिए काम करना पड़ता है। हम लोग क्या काम करना पड़ता है? हम लोग को मेमोरी के लिए काम करना पड़ता है, कि हमको बताना पड़ता है कि भाई इतनी जगह लो, ठीक है? कि एक्स्ट्रा जगह मत लो, सो दैट वी कैन बी मेमोरी एफिशिएंट। आ गई बात समझ में, हाँ कि ना? शफा, Yes. सानिया, फॉलोइंग? या ओके, समझ गई। हाँ हाँ आसिफ, हाँ आसिफ गो अहेड। सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। लेट से दिखा रहा है जो आप बता रहे हैं। ओके, हो आप जो सकता है बोल आप रहे पे हैं ना, बहुत लैग कर लेट रहा से हो। दिखा रहा है, मैं डिस्कनेक्ट करके फिर ओके, नो प्रॉब्लम। सो इज इट लैगिंग फॉर अदर्स टू? डिस्कनेक्ट करके फिर से connect करूंगा। No, no, it's fine. ओके, थैंक यू। शमशाद, आर यू फॉलोइंग? Yeah, I am following. ओके, थैंक यू। तो ये हो गया। तो हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस, कभी भी हम लोग जब बोलते हैं ना इंट ए, तो याद रखना क्या है कि मेमोरी में क्या हो रहा है बताओ? मेमोरी में एक जगह बनती है, ठीक है? कभी भी याद रखो, whenever our program will be reading this part, कभी भी जैसे हम लोग int a इक्वल टू 5 भी करते हैं, मान लो int a इक्वल टू हम लोग 5 करते हैं, ठीक है? चलो हम एक ए बी कर देते हैं, हम वेरिएबल का नाम दिस टाइम आई एम गिविंग ए बी, ठीक है? तो ये क्या करेगा पता है? ये मेमोरी में जाएगा एंड मेमोरी में जाके ये एक जगह बनाएगा जिसका नाम ए बी होगा। फर्स्ट इट रेड दिस पार्ट,
इस पार्ट को रीड किया तो ये जाके ए बी नाम का जगह बनाया, देन इक्वल टू करेगा, मतलब इसके अंदर वैल्यू डालना है। व्हाट इट विल पुट 5। क्या डालेगा इसके अंदर? 5। ठीक है, आ गई बात समझ में कैसे रीड करता है प्रोग्राम को? ठीक है, Yes. तो दिस इज हाउ इट हैपेंस कि मेमोरी में वो कैसे जाता है। व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग डेटा टाइप, और डेटा टाइप हम लोग क्यों देते हैं? हम लोग अपने प्रोग्राम को मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग को बताना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी दे दें। ठीक है, वी हैव टू गिव प्रॉपर डेटा, और उसको बताते हैं कि भाई हाँ ये नंबर वाला है टाइप तो नंबर लो, ठीक है, अगर ये वर्ड वाला टाइप है तो वर्ड लो। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर बताओ, अगर मैं स्ट्रिंग, अगर सपोज स्ट्रिंग अगर मेरा लेता है, सपोज माई स्ट्रिंग टेक्स 8 बाइट, ठीक है, मान लेते हैं 8 बाइट्स लेता है, ठीक है, और मेरा जो कैर है वो 4 बाइट लेता है, एंड आई वांट टू स्टोर ए, मतलब एक एक्स नाम का कैरेक्टर को स्टोर करना है। व्हाट वुड बी बेस्ट वे फॉर डिक्लेयरिंग अ डेटा टाइप? कौन सा बेस्ट होगा? स्ट्रिंग की कैर? कैर होगा, राइट। कैर लेंगे तो हम लोग का 4 बाइट यूज होगा, वरना अगर हम तो स्ट्रिंग में भी ये ऐसे लिख सकते थे, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो आई कैन डू इट। मैं इवन स्ट्रिंग के अंदर नंबर भी डाल सकता हूँ 1 2 3 करके। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, बट इसको करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब नंबर डालना है तो वी विल गो विथ इंट। इसीलिए मैंने आपसे ये 5 चीज पहले बताई कि आपको कभी भी नंबर डालना है, अगर होल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं है, तो वी विल गो विथ इंट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डेसिमल नंबर है, वी विल गो विथ डबल। ठीक है, अगर एक ही कैरेक्टर लेना है तो वी विल गो विथ कैर, अगर ज्यादा कैरेक्टर लेना है तो वी विल गो विथ स्ट्रिंग, और अगर ट्रू और फॉल्स है, कहीं पे कंडीशन ना कुछ पार्ट है, तो वी विल गो विथ बूलियन। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर टू अदर्स एवरीवन? क्लियर है? Yes. Yes. कम ऑन, बोलो बोलो, इट शुड नॉट बी वन डायरेक्शनल, दोनों तरफ से होगा तब मजा आएगा। ठीक है, हाँ भैया। चलो, तो बिल्कुल ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो आई एम जस्ट पुटिंग दिस एज वेल इन द ग्रुप, तो आप लोग बिल्कुल रेफर कर सकते हो इसे। कंट्रोल वी, पुटिंग इट हियर। ओके, तो ये हो गया हमारा व्हाई एग्जैक्टली वी गो विथ डेटा टाइप्स। हम लोग डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं, और डेटा टाइप हमेशा किसके आगे लगता है, जल्दी बता दो। डेटा टाइप हमेशा वेरिएबल के आगे लगता है। ठीक है, क्योंकि डेटा स्टोर होता है वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल का हमको बताना पड़ता है कि भाई कौन सा डेटा का टाइप लेना है। ठीक है, कौन सा डेटा का टाइप लेना है, एंड अकॉर्डिंगली इट विल टेक द डेटा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप रिलेटेड थिंग। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड डेटा टाइप पार्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखते हैं, वी हैव कवर्ड दिस पार्ट। वी हैड ऑलरेडी कवर्ड क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल इन आवर लास्ट क्लास। तो नाउ कमिंग टू द कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या है जावा में? ठीक है, तो चलो फिर से चलते हैं अपने स्क्रीन पे। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डन, कैनवास। ओके, तो चलो, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे? लेट मी स्क्रॉल अप अ लिटिल, थोड़ा सा हम लोग को नीचे आने की जगह मिल जाता है। देखो, कीवर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, बिफोर आई गो फॉरवर्ड, जैसे यहाँ पे हमारे पास मतलब मैक्सिमम अदर रीजन से भी लोग हैं यहाँ पे। सम पीपल आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सम फ्रॉम बिहार, सम फ्रॉम राजस्थान, सम फ्रॉम अदर प्लेसेस वी हैव, ओके, फ्रॉम झारखंड। सो एक ऐसा होता है ना कुछ कुछ जगह पे कि यार पीपल नो ओनली द नेटिव लैंग्वेज, है ना? होता है ना कि मतलब कोई बंगाल में है तो देर आर सम पीपल जिनको सिर्फ बंगाली आती है, दे डोंट इवन नो हिंदी, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, वो बोल पाते हैं, होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो ये चीज होता है ना, तो वैसे ही जावा है हमारे साथ। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज ना जावा सिर्फ समझता है। ठीक है, तो वो जो समझना है ना कि कुछ कुछ वर्ड जो सिर्फ जावा ही समझ सकता है, मतलब अपने लैंग्वेज को समझ सकता है, दोज आर एक्चुअली कीवर्ड्स। ठीक है, तो उसे क्या है, वो वर्ड मिलेगा ना तो वो समझ जाता है अच्छा ये करना है, आई हैव टू डू दिस। तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड वर्ड्स। दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, दैट आर प्रीडिफाइंड एंड as a meaning. I just request
others to just go on mute, please. That has meaning associated to it. ठीक है, तो ये क्या होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं, दीज आर रिजर्व वर्ड्स, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं दैट आर प्री डिफाइंड, जो ऑलरेडी जावा में डिफाइंड है, ठीक है, एंड दे हैव अ मीनिंग एसोसिएटेड विद इट, एंड हम लोगों ने क्योंकि ये ऑलरेडी कह दिया है तो विल जस्ट ऐड दैट लाइन एज वेल, एंड ठीक है, these words cannot be used as variable name, these words cannot be used as वेरिएबल नेम और क्लास नेम, कैनॉट बी यूज्ड, ऐसा लिख लेते हैं, फॉर नेमिंग, ठीक है, दीज वर्ड्स कैनॉट बी यूज्ड फॉर नेमिंग अ वेरिएबल और क्लास, अ वेरिएबल और क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये सब वर्ड को हम लोग को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑलरेडी जावा में डिफाइंड वर्ड्स हैं, ठीक है, तो अराउंड 48 वर्ड्स आर देयर, एज पर माय नॉलेज अराउंड 48 वर्ड्स आर देयर जो कि जावा में डिफाइंड वर्ड्स हैं, और उनको हम लोग को सिर्फ तभी यूज करना है जब हम लोग को उसका मीनिंग वाला काम कराना है, ठीक है, देन ओनली वी आर गोइंग टू यूज इट, एल्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर नेमिंग, कहीं पे नाम में यूज नहीं करना है, क्लास के नेम में उसको यूज मत करना, वेरिएबल के नेम में उसको यूज मत करना, इन वेरिएबल नेम का कन्वेंशन में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट का नाम भी हम लोग जब रखेंगे एट दैट टाइम आल्सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज कीवर्ड्स, तो बस ये याद रखो, कीवर्ड्स को हम लोगों को बस यूज नहीं करना है फॉर नेमिंग एनीथिंग, ठीक है, चलो, तो विल जस्ट लुक एट द लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स, जो हमारा कीवर्ड्स है, देखो यहाँ पे, जैसे ये अराउंड 48 कीवर्ड्स आर देयर, हेलो एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग? System.out.println is a keyword. System.out.println is not a keyword. Okay. Zakia, want to ask anything? Yes, that one. Okay, okay. You can put your hand down. Okay, no problem. Okay, that is not a keyword. Okay. तो यहाँ पे क्या, I'll be explaining that as well when we go when we proceed to the later part of the course, वहाँ पे explain करूँगा. Also I'll be explaining you public static void main. ठीक है, I intentionally did not explain public static void main because क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि what is access modifier, what is static keyword जो है वो क्या है, तो ये सभी आपको नहीं पता, आपको return type नहीं पता है, तो that is why I'm not covering it right now. We will be doing it at the later phase. Okay, चलो, तो यहाँ पे अभी है, तो हम these are few keywords, ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा ना int, जो हमारा int था, you cannot give anything int नहीं लिख सकते हो, ठीक है, वेरिएबल का नाम int मत लिख देना, जैसे int हो गया, जैसे ये डबल हो गया, ठीक है, वी कैनॉट यूज दिस, और एक चीज याद रखो, जो भी स्टार्ट हो रहा है, जस्ट मेक अ ऑब्जर्वेशन हियर कि जो भी स्टार्ट हो रहा है, एवरीथिंग स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, सारे चीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर हम लिखते हैं फॉर और कैपिटल फॉर लिखते हैं, तो कैपिटल फॉर एंड स्मॉल फॉर आर डिफरेंट, याद रखना, केस सेंसिटिव वाला पार्ट, ठीक है, तो आप कैपिटल फॉर यूज कर सकते हो, आप कैपिटल इंट यूज कर सकते हो, लेकिन स्मॉल इंट में यूज मत करना, ठीक है, तो दीज आर लिस्ट ऑफ 48 वर्ड्स जिसको जावा ने बना दिया है कीवर्ड्स, एंड दे हैव सम स्पेशल मीनिंग अटैच्ड टू इट जिसको जावा समझता है, ठीक है, एंड वी कैन नॉट यूज दिस फॉर नेमिंग आर क्लास नेम, फॉर गिविंग नेम टू आर क्लास और वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, क्लियर, ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज 48 नेम्स, आपको ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज द कन्वेंशन दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, कि हम लोग जब एडिशन करेंगे तो वी विल जस्ट याद रखेंगे कि हम लोग ऐड कर रहे हैं किसी दो चीज को, ठीक है, तो हम लोग उसी तरह से क्लास नेम हम लोग जैसे अभी तक देते आए हैं, एकदम बेसिक क्लास नेम जो हम लोग अंडरस्टैंडेबल होता है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप जिसके जगह पे जा रहे हो उसको इस तरह से कोड लिखना चाहिए कि आप मतलब मेरे बाद अगर कोई आ रहा है, ठीक है, तो ही शुड अंडरस्टैंड द कोड, तो वैसा हम लोग को उतना इजी करके लिखना पड़ता है, दैट इज व्हाई फ्रॉम डे वन आई सेड वी विल बी फॉलोइंग द कन्वेंशन, तो इसी वजह से हम लोग स्ट्रिंग नेम लिए थे, हम लोग स्ट्रिंग ए लिख सकते थे, एक्स लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, बट वी फॉलोड, सो यू आर एटलीस्ट वन स्टेप अहेड फ्रॉम अदर्स, ओके, चलो, तो सिंस वी आर ऑलरेडी फॉलोइंग, तो ये आपका टोटल में 48 वर्ड्स है, यू रियली डोंट हैव टू रिमेंबर, टू बी ऑनेस्ट यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच वन ऑफ देम, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इन बिटवीन मतलब बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सब यार यूज नहीं करना है, ठीक है, चलो, तो ये हो गया, तो अभी हम लोगों ने देख लिया है कि एग्जैक्टली वी हैड डिस्कस्ड अबाउट डेटा टाइप्स,
keywords. ठीक है, तो we have done with data types and what are keywords. Keywords जो reserved words होते हैं, they have special meaning and we cannot use them for naming, either for a class, variable name and also our objects. ठीक है, then we will move to the package part. तो इसके लिए हम लोग चलो अपना Eclipse open कर लेंगे. ठीक है, just to understand package होता क्या है. ठीक है, we have already created packages, right? याद है कि सबको packages हम लोग बनाए थे. हाँ ठीक है, तो वो बिल्कुल हम लोग अभी देखेंगे कि पैकेजेस होता क्या है. दिस इज जस्ट अ टर्म जो आपको याद रखना है. ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट पूरे ये 6 टर्म में व्हाट इंटरव्यू इज गोइंग टू आस्क यू इज ओनली दीज 2 टर्म्स. इफ एट ऑल दे आर गोइंग टू आस्क यू दीज 2 टर्म्स. They are not going to ask you anything apart from these 2. One question that can come from data type that I will be dealing in the later part of the course. Okay, so that question I will be dealing, don't worry. So these 2 things are very important. ये दो आपको अच्छे से मैंने समझा भी दिया है लास्ट क्लास में. And just do a follow up. और बाकी की चीजों को बस आप नॉलेज के लिए जान लो. If you are asked somewhere या फिर कहीं पे आपसे कोई बच्चा भी पूछ लेता है, you are able to explain कि हाँ भाई मैं जावा पे काम करती हूँ या करता हूँ, तो आई नो दीज थिंग्स, राइट. चलो, तो दिस इज समथिंग दैट. तो हम लोगों ने देखा था कि कीवर्ड्स वी कैन नॉट यूज, राइट. तो अभी हम लोगों ने नेमिंग पढ़ लिया था वेरिएबल का, कीवर्ड्स भी इसमें एक पार्ट था. तो कीवर्ड कैन नॉट यूज. तो चलो एक नॉर्मल से एक्सरसाइज करते हैं. आई सी द क्लास इज गेटिंग डल नाउ. ठीक है, I see everybody is quiet at this moment. Okay, so I just want you all to participate, right? So चलो अभी हमारे पास एक एक्सरसाइज है. Okay, I'll just name people. If anybody would like to do it, I'll name and you have to answer कि is it possible or not. ये examples I just want you to tell me कि ये possible है कि नहीं. ठीक है, ये variable name है. ठीक है, चलो. Moving to the first person, let's have Sania. Sania, go ahead. Sania, first one. Yes, it is. It is possible or not? Yeah, it's possible. Okay, it's possible. How many of you feel she is correct? Is correct. Asif, she is correct? Yes. Okay, yeah. Sania, you are correct in this one. Okay, moving to the second part. Okay, the second number. This is $123. I want Shakil to answer. Shakil, go ahead. Yes, correct. It is correct. We can use, right? Right. Okay. Moving on to Shafaq. Shafaq, third one. no, because at cannot be used, no. Yeah, this underscore at the rate symbol cannot be used, right? कि हम लोग Yeah, सिर्फ so it's not possible. दो ही यूज कर सकते हैं. What are the 2? कौन कौन से Dollar हैं, and जल्दी under- बताओ. डॉलर एंड अंडरस्कोर. करेक्ट शफा. ठीक है. Now moving on to the third person. Let's have there is someone with li. I don't know who this is. I want that person to answer. It's me, Usama. Okay, go ahead please. What do you think? Is it possible, this one? I think so. It's possible, sir. Yes. Okay. So why do you think this is possible? There is underscore, Okay. but it's not a. Okay, he says there is an underscore. Okay, I'll just come back to you just after this question. I want somebody to answer this particular question for me. This only underscore part. Is it possible? Let me check with Shamshad. Shamshad, this is possible. Hi, Shamshad. Yeah. Shamshad, do you think this is possible? Can we name our variable like this? Only underscore. Underscore. Zakia, can you Not go this on? is not possible. Okay, Shamshad says it is not possible, but Shamshad, we mentioned like we can use dollar and underscore. Okay, moving on to the next question. I'll answer you people after this. Okay, so moving on to the next thing. Amir, just tell me, only dollar, is it possible? Shamshad No. said only underscore is not possible. Only dollar is also not possible. Okay, Amir says only dollar is not possible. How many of you feel Shamshad is correct? Yeah, he's correct. Zakia, is Shamshad correct?
It should be start with letter. I had actually mentioned it should not start with zero, right? Sorry, it should not start with a digit, right? So for this one, I'll tell Amir, your answer is wrong. We can have this. Now, Shamshad, do you want to revert your answer? Dollar is possible. Do you want to revert your answer, Shamshad? Yeah, this is incorrect. This is incorrect means we can have or we cannot have it as a variable name. Dollar is the correct one. We can have dollar as a variable name. I'm not. We can use or not? Yes or no? That's it. Cannot use. Okay, we cannot use. Yes, Shamshad is correct here. We cannot use because from Java, after some version, because now they have introduced underscore alone as a keyword. Okay, now they have introduced this thing with the new latest version. Okay, and coming to this one that one of our users said. So here this is possible. We can use underscore and anything. So this is correct. Okay. So remember one thing. We cannot have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 9. And we cannot have underscore alone. We cannot have those things. Okay. So we cannot start with any digit and we cannot have underscore alone. But we can have dollar. Dollar alone can exist and this is a perfect variable name. We can use it. Okay. Now moving on to the next thing. 1 underscore ABC. Zakia. Zakia, what do you think? 1 underscore ABC. Possible or not? Not possible. Why, Zakia? Because it is a digit. It is starting with digit. Okay, since it is starting with a digit. Okay, so it is correct. Since it is starting with a digit, we cannot have it. So moving on to the next part, this ABC underscore dollar space 1. So I want, we have, okay, Asif, tell me, can we have, is it possible or not? Asif, go ahead, please. Hello. Yes, possible. It is possible. Asif says this is possible. Who says Asif is correct? This, yeah, It's not it's not possible. possible. It's not possible. Correct. It is not possible. Why? Because we have a space, Asif. We have a space after dollar. It is not possible. We cannot have a blank space anywhere. Yes. Correct? Yes. Okay. Right. Now moving on to the last part, that is if is written over here. So I just wanted to ask. Okay, Shakil, go ahead. Possible or not? Possible. Possible. If is possible, Shakil says. What do you Not say, possible. people? No, Not keyword. possible. It's a Keyword. It is keyword. not possible because it is a keyword, Shakil. Here we have if as the keyword, line point number 21 if you see. Okay, Shakil, Yeah. got it? So we cannot have keyword. So we did a variety of questions here to understand what exactly is possible, and I think most of you have got the concepts right. तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है? Everything is working fine as per what our expectation is, ठीक है? So we have covered the Just a question, Go ahead, please. like in the rules for naming, it was written the first character must be a letter. So in those variables, like the one you said, underscore and dollar and underscore is possible, but the first character is not a letter, right? I think I just missed it there. Thank you for bringing it up. Okay. So, yeah, Shafaq, that is possible. Okay. I'll just make that correction here. Thank you for bringing it up. Okay. So, just remember, guys, we can start with dollar as well. Okay. We can start with underscore as well. But underscore cannot exist alone, but dollar can. Got it? Characters Understood? including underscore and dollar, right? Yeah. Here, if you see, Yeah. here we can start with underscore, like I think we have one question, underscore and dollar. So this will work perfectly fine. This is perfect. Okay. And we cannot have this alone, underscore alone we cannot have, but we can have dollar alone. And we cannot have it starting with a digit, right? Yeah, we cannot have anything starting with a digit.
Okay, okay, thank you. Okay, understood? Thank you for bringing up, Shafaq. Okay. Okay, so this was all that I wanted to bring up. I think there was some typo here, so I'll just make the correction. And yes, so moving on. So we have covered each and everything. Now moving on to the package part. So for this, we will just move to our Eclipse. So I'll just open my Eclipse. We have some 13 minutes and we'll just try to cover that part as well. And we'll also see dollar and underscore part, okay, in the program. So let me just launch this. By the time it comes here, if anybody is having doubt, please raise it here. Anybody of you having any doubts here? Let me check with Shamshad. Are you having any doubts? Sania, any doubts? No doubt. Okay, Shafaq, any doubts up till here? No, nothing. Thank you. Okay, Amir, anything from you? No. Zakia? No doubt. Thank you. Asif? फैजान भाई कीवर्ड का टाइम हम डिस्कनेक्ट हो गए तो उसको थोड़ा बता देते हैं. Okay, it would be good if we can do it at a later point. Okay, so or else we have this recording of the session, so you can just refer to that as well. And if you still have any doubts, we can just connect personally and check that out. Okay, so moving further, I think our Eclipse is ready, so we'll just move inside. तो हमारा package होता क्या exactly? देखो पैकेज की डेफिनेशन इज वेरी मतलब इजी, आप खुद से बना सकते हो. आई जस्ट रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू गो ऑन म्यूट प्लीज. जस्ट रिक्वेस्टिंग ईच वन ऑफ यू. ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, देखो हम लोगों ने ये जो दिख रहा है डब्बा डब्बा दिख रहा है अमेजोन का पैकेज की तरह या फ्लिपकार्ट के पैकेज की तरह दिख रहा है. देखो लुक एट माई कर्सर, मैं अपने कर्सर को वहां लेकर गया हूँ. देखो यहाँ पे ये दिख रहा है डब्बा डब्बा. ठीक है, तो ये जो डब्बा है ना, दिस इज योर पैकेज. क्यों? डब्बा के अंदर कुछ कुछ चीजें होती है. करेक्ट. तो डब्बे के अंदर जो चीजें होती है ना, डब्बा जो बनता है, दैट बिकम्स योर पैकेज. तो पैकेज क्या होता है? पैकेज इज नथिंग बट अ ग्रुप, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ क्लासेस. जैसे इसके अंदर भी हमारा एक क्लास है, वी विल बी क्रिएटिंग मोर क्लासेस नाउ. ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके एक एक बनाना है, तो हम लोग अपने ग्रुप कर सकते हैं. ठीक है, इट इज जस्ट फॉर ग्रुपिंग थिंग्स. तो हम जैसे यहाँ पे अपने जितने भी क्लासेस जो कोड लिख रहे हैं क्लास में जावा फाइल में, वी विल जस्ट बी पुटिंग इट अंडर वन. ठीक है, जैसे हम लोगों ने इस डब्बे का नाम दिया था कि भाई दीज आर बेसिक प्रोग्राम्स. ठीक है, उसके बाद फिर हो गया हमारा वेरिएबल प्रोग्राम्स, जो वेरिएबल से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, विल बी पुटिंग इट हियर. ठीक है, तो अभी हम लोग और भी इसके अंदर अभी पुट करेंगे, अभी देखेंगे एग्जैक्टली. ठीक है, तो हमारा पैकेज एग्जैक्टली क्या होता है? पैकेज इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ सिमिलर, मतलब सिमिलर क्लासेस बोलो. इंटरफेस इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो याद रखना क्लासेस, इंटरफेसेस एंड वी कैन हैव सब पैकेजेस आल्सो. ठीक है, पैकेज के अंदर पैकेज होता है ना. फ्लिपकार्ट के डब्बे के अंदर एक और डब्बा होता है कि नहीं होता है? बताओ बताओ. होता है ना कि एक डब्बा रहता है, उसके अंदर एक और डब्बा रहेगा. ठीक है, और कभी कभी हम लोग अपने बर्थडे पे भी फ्रेंड्स को भी फूल बनाने के लिए क्या करते हैं कि डब्बे के अंदर 8-10 डब्बा डाल देते हैं, अंदर एट लास्ट कुछ नहीं रहता है, वो पेपर में कुछ लिख देते हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट जनरली पीपल डू. ठीक है, तो इस वजह से दैट वाज जस्ट अ बेसिक समझने के लिए कि क्या होता है. तो पैकेज क्या होता है? जो हम लोग नॉर्मल पैकेज समझते हैं, इट इज सेम जावा में भी. इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? अपने क्लास फाइल को स्टोर करते हैं, या पैकेज के अंदर और भी छोटा छोटा सब पैकेज रख सकते हैं. ठीक है, या फिर हम लोग उसके अंदर इंटरफेसेस, जो कि हम लोग एक आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसे भी रख सकते हैं उसके अंदर. इट इज सिमिलर टू क्लासेस, क्लासेस जैसा ही होता है इंटरफेस. ठीक है, तो वैसा. चलो, तो अभी हम लोगों ने ये चीज समझ गए. ठीक है, पैकेजेस क्या होता है. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? पैकेजेस क्या होते हैं जल्दी बता दो. Group of class files, interfaces. Package is nothing, is a folder where we store the Java resource. Is a group of similar, ठीक है, similar classes. क्लासेस सेम होंगे. इंटरफेस इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू, अभी नहीं, बहुत लेट में पढ़ेंगे. इंटरफेसेस और सब पैकेजेस. ठीक है, सब पैकेजेस. ठीक है, और दो तरह का होता है, याद रखो पैकेज दो तरह का होता है. एक तो अभी हम लोग जो बनाए थे, दैट इज कॉल्ड, आपका बोलते हैं उसे यूजर डिफाइंड. यूजर डिफाइंड, करेक्ट, थैंक यू. यूजर डिफाइंड पैकेज एक होता है. ठीक है, और एक होता है आपका प्री डिफाइंड. ठीक है, जो प्री डिफाइंड पैकेज है. ठीक है, तो
तो ये प्री डिफाइंड पैकेज कौन कौन से हैं? जैसे हमारा होता है ना IO, java.io, java.util, ठीक है, ठीक है, lang हो गया, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, IO util ये वाला। और यूजर डिफाइंड तो हम लोग जो अभी अपने खुद से बनाए हैं उस तरह का पैकेज को यूजर डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका पैकेज के लिए, ठीक है। ये भी कोई आपसे नहीं पूछने वाला इंटरव्यू में, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बस नॉलेज के लिए जान लो क्या होता है। चलो मूविंग ऑन, अभी हम लोग वेरिएबल वाले में एक और बना लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू चेक आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स हम लोग जो जो यूज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेज तो ऑलरेडी बना है, तो हम लोग उस पैकेज के अंदर ही एक और क्लास को रख लेते हैं, ठीक है। चलो न्यू में जाते हैं, देन विल गो टू द क्लास, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरिएबल 2 लिख लेते हैं। वेरिएबल क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग चेक कर, चलो डेटा टाइप्स चेक कर लेते हैं, वेरिएबल को वहीं यूज कर लेंगे। डेटा टाइप्स, डेटा क्लास है तो डी कैपिटल लिख लेते हैं, डेटा TYPES, डेटा टाइप्स, ठीक है। कम ऑन, तो ये कर लिया हम लोगों ने। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे इसके नीचे, जल्दी बता दो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा एंट्री गेट है, ये नहीं लिखेंगे तो कोड हमारा अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। चलो अपने ब्रैकेट्स को खोल दिए और बंद कर दिए, ठीक है। आई प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू गो ऑन म्यूट प्लीज। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने 5 डेटा टाइप जो जो देखा था, ठीक है, विल जस्ट ट्राई टू इंटरचेंज वैल्यूज एंड सी, ठीक है। हमारे पास अभी 7 मिनट है तो आराम से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलो इंट लिखते हैं, इंट नेम दे देते हैं नम, क्योंकि नंबर इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो नम इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। चलो परफेक्टली, सॉरी यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करते हैं, कैर सी, कैरेक्टर है ना, तो पूरा कैरेक्टर लिख लेते हैं, कैरेक्टर इक्वल टू न्यू, सॉरी न्यू कैरेक्टर लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका एक्स, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो गया स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, ए मतलब चलो स्ट्रिंग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सेंटेंस को मैं छोटा में लिख रहा हूँ, सेंट लिख ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये हो गया मेरा चलो माई नेम इज फैजान, आई एम फ्रॉम रिग्रोटेक, ठीक है। चलो ग्रो, सेमीकोलन दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। एंड देन विल गो विद बूलियन, तो BOOLEAN बूलियन, ये भी हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो छोटा में ही होगा। इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं कंडीशन, दे देगा ट्रू या फॉल्स या कुछ भी आप लोग लेना है ले लो। कंडीशन इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रू, ठीक है, ये हो गया। एंड देन द लास्ट वन वाज डबल, डबल यहाँ पे लिख लेते हैं तुम्हारा डेसिमल होता है ना, तो डेसिमल इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं 2.4564, मैंने कुछ भी लिख लिया, ठीक है। देखो कहीं पे कोई एरर है, बताओ कहीं पे कोई एरर है, बताओ बताओ यार, नहीं 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 कहीं पे कोई एरर आप लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है हमारा, जहाँ पे कोई एरर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए एरर नहीं है बिकॉज वी हैव गिवन परफेक्ट टाइप। देखो अब लेकिन अभी क्या है, अभी हम थोड़ा सा सबको थोड़ा सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है, आसानी से दिखने के लिए। देखो अभी कहीं पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। और ये अभी ये येलो येलो आ रहा है बिकॉज वी हैवंट यूज्ड एनीवेयर, ठीक है। सो कहीं यूज नहीं किया इसलिए येलो येलो आ रहा है, दे आर शोइंग द वार्निंग टाइप, ठीक है। तो अभी आपको उस पर कुछ डरना नहीं है उसको देख के, ठीक है। देखो जब रेड होगा, रेड मीन्स एरर, ठीक है। चलो तो अभी देखो ये नंबर वाले में मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको डेसिमल कर देता हूँ, इंट को मैं डेसिमल कर देता हूँ, पॉइंट लगा के 3 4 5 लगा दिया, देखो ये एरर आना चालू हो गया, आया। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई आप तो इंट टाइप दिए हो कि स्टोर करना है मुझे नंबर, और आप डाल रहे हो क्या, रॉन्ग डेटा टाइप, आप रॉन्ग डेटा डाल रहे हो, डेटा टाइप गलत डाल रहे हो, ठीक है। तो फिर इसको सही देना पड़ता है। अब कैरेक्टर को अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्स लिखूं, देखो सिंगल ही कैरेक्टर है लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, देखो फिर एरर आ रहा है, ठीक है, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है या नहीं बताओ। हाँ हाँ तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ स्क्रीन, देखो एरर आ रहा है ये, ठीक है।
तो इसको क्या है, ये सिंगल ही कोट चाहिए। अगर कैर लिखेंगे तो उसको सिंगल ही होना चाहिए। और ये इंट कैर ये सब आपका डेटा टाइप्स है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग सेंटेंस है। अगर मैं इस सेंटेंस को अगर सिंगल में डालने की कोशिश करूं तो दिस विल गिव एरर। देखो ये एरर देना चालू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट, ये हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर ये x के साथ मैं कैरेक्टर वाले में x के साथ e डाल देता हूँ सिंगल कोट में ही, देखो ये तभी एरर देगा क्योंकि वो सिंगल कोट में कैरेक्टर सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। अब आप वहां पे कुछ भी डाल दो, आप यहाँ पे @ डाल दो, परफेक्ट है। यहाँ पे आप 1 डाल दो, परफेक्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना है, अगर सिंगल कोट के अंदर डालते हैं तो वो कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। चलो, और ये हमेशा स्ट्रिंग वाला डबल कोट्स के अंदर ही होगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखना इन सब चीजों को, ठीक है। और ये बूलियन वाले मान लो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना नाम, लिख देते हैं फैजान, ये एरर दे देगा। ये फैजान थोड़ी लेगा, ये सिर्फ क्या लेता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू देख लिया था, अब फॉल्स देखो, फॉल्स के साथ भी एरर नहीं देगा, ठीक है। और ये डेसिमल वाले को अगर हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा देखो, ठीक है, ये एरर नहीं देगा। एरर नहीं दिया ना, मैं क्या बोला था, जब ये ऐसे छोड़ देंगे और इसको जब देखो हम लोग प्रिंट करेंगे ना, कि देखो यहाँ पे भी हम प्रिंट करेंगे इसे, ठीक है। सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, जब हम इसको डेसिमल को प्रिंट करेंगे, डेसिमल को प्रिंट करो, ठीक है। ओनली आई एम राइटिंग द डेसिमल, ये वाला ये लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा वेरिएबल जिसमें स्टोर है उसका नाम लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग आउटपुट क्या देता है। Ctrl+S मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और चलो छोटा करके रन कर देता हूँ आपके सामने। सिर्फ एक ही रन किया है तो डेसिमल वाला आएगा, देखो 2.0 कर देगा उसे वो, ठीक है। विल सी द आउटपुट। देखो आउटपुट क्या दिया है, क्या दिया आउटपुट 2.0। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? यस। ठीक है, तो ये होता है। अब चलो अभी हम लोग बात कर रहे थे डेटा टाइप वाले में, तो अभी मैं बस सिंपली चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इंट टाइप पे मैं नम को हटा के ना वो अंडरस्कोर दे दे रहा हूँ, ठीक है। अंडरस्कोर दे रहा हूँ, सॉरी अंडरस्कोर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एरर दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस सिंबल दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो ये लिखा है ना सोर्स लेवल 9 ऑनवर्ड, देखो वहां लिखा है, ये देखो आप लोग, ये अंडरस्कोर इज अ कीवर्ड फ्रॉम सोर्स लेवल 9 ऑनवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, लिखा है ना। तो दिस इज द रीजन वी कैन नॉट यूज अंडरस्कोर। लेकिन यहाँ पे अगर हम डॉलर लगा दें तो दिस इज फाइन, देखो डॉलर फाइन है, हट गया एरर, ठीक है। तो डॉलर अलोन कैन एग्जिस्ट बट अंडरस्कोर अलोन कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। एंड अंडरस्कोर विद डॉलर इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। क्लियर नाउ? वी कैन नॉट हैव अ नंबर इन फ्रंट, $1 नहीं हो सकता है, नंबर आगे नहीं हो सकता है, ठीक है। एवरीथिंग वॉट एवर इज टॉट इज वेरीफाइड एंड टेस्टेड, राइट। ये हमारा हो गया कंप्लीट चीजें, ठीक है, कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट चीज। और अब आपको एक असाइनमेंट मिलेगा वेयर यू विल बी नॉट असाइनमेंट, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। यू विल बी गेटिंग अ कैप्सूल एंड आपको उस कैप्सूल में आंसर करना है। आई थिंक 3 क्वेश्चंस आर देयर, one is from keyword, one is from package and one is I think from data types. तो ये हो गया, तो just go through it, do it, and also one more program is there जिसमें आपको सारे data type use करके एक अच्छा मैसेज लिखना है, ठीक है। तो वो आपको करना है and once that is done then you can send that across to us and we will verify. And apart from that, since this was our last demo session and was free for everyone to join, so from next time we will be having a different meeting link. So I'll be forwarding this in the group that we will be creating for the registered students, and from now on only those students will be there in the group, those who have paid for the complete course. And that is all from my end. If anybody is having any question, please go ahead and ask. Asif, do you have anything to ask? No, bhai. Thank you, Asif. Then Sania, do you have anything? No, everything is clear. Thank you, Sania. Then Shamshad, do you have anything to ask? Yeah. I say something. I'm joined for today. I'm missing for last day. That's why I have many things of the doubt for that.
classes. Okay, sure, Shamshad. We will just provide you the recording of the previous 2 sessions, and you can just go through that. And if at all you have any doubts, then we will be appointing mentors to you, so you can just get your doubts clarified from them. And maybe if they are not available, I'll be taking up your doubts. Okay. Okay, thank you. Thank you. No problem. Amir, do you have anything? Amir, No. सारी चीजें समझ में आ गई? Okay. Amir, just try to say things in English. Okay, not na, ha. We'll just try to Okay. converse in English Yeah, for yeah. whatever time we are talking. Okay. Okay, thank you. So, Shakil, do you have anything? Shakil? No, brother. Thank you, Shakil. Shafaq, any doubts up till here? No, thank you. Thank you. I don't remember your name. Can you please tell me if you have any doubts? No, sir. I don't. I'm just telling you, please don't call me, sir. Okay. So you can let me know at any time if you have any doubts. Okay. Okay, thank you. Then let me check if we have anyone else here apart from others. Okay. Okay, Shanwaz has also joined today, so that's good. Okay. So I think I checked with each one of you, and I think I'm done with today's session. I'm thankful for your time, and enjoy the rest of your time, and I'll be sending you the capsule very soon. So let's meet on Saturday in the morning. And yes, thank you. Thank you Good for your night. time. Good night. Good night. Thank you. Yeah. Thank you. Good night.